A very pleasant morning to all the dear students of class 7. In the previous video we have started with our chapter number 4, simple equations. Okay, and we have known about the variables, constants, and revised our previously learned concepts and expressions. And then when the expression is put equals to something or equals to 0, then it becomes an equation. Okay, the expression will become an equation when it is put with an equality equal to something, either 0 or either a number or either anything. Okay, so the expression containing an equals to sign is called as an equation. And we have learned about the simple equations in the previous video and done our exercise 4.1, from in which we have converted the statements into equation. Okay, statements are to be converted into equation so that you can solve the word problems, or you can formulate any given situation that I have discussed in the previous video. Any given situation can be formulated into the simple equation. You will be able to do that and then solve that equation. And solving that equation, I have discussed a little about that in the previous video, that solving an equation is that value of variable which satisfies the equation. Okay, it means when we say that we want to solve an equation, जब आप किसी equation को solve करते हैं, then you find the value of variable. आप variable की वो value find करते हैं जिसके लिए equation get satisfied, equation satisfy हो जाए. It means that LHS of the equation, the left hand side of the equation become equals to the right hand side, that is RHS. Okay, it means both the sides LHS and RHS when become equal for any value of variable, okay, the variable xyz, then you say that we have find the solution of the equation, or you can say that equation is satisfied. Okay, then in the 4.1 exercise you have just formulated the equation into statements and the statements into equation. And in the question number 1, as you have done, that equation was given, and for some value you were checking, for some value of variable you were checking that the equation is satisfied or not. Okay, so that is clear from there. Now moving further, solving an equation. Now we want to solve a given equation. एक इक्वेशन हमें दी हुई है वेरिएबल में इक्वल्स टू साइन के साथ, है ना, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक है लेकिन आपके लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लास 7 आप इसको समझते नहीं है एंड जस्ट यू डू, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब होता है और फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं. तो प्लीज़ पे अटेंशन और आपको ये रिमेंबर रखना है. सॉल्विंग एन इक्वेशन के लिए अगर बात करें तो आपके पास दो तरीके हैं. ठीक है, in the first section we are dealing with the addition, adding, subtracting or multiplying or dividing the same number on both the sides of the equation. Okay, अभी जो मैं सेक्शन आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसके बाद आपकी 4.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस सेक्शन. वो है आपका कि जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें इक्वेशन में, देन यू will be able to find the solution of equation, that is value of variable. Okay, in the next section you will learn about transposing. It means solving an equation by transposing. It means two methods हैं आपके पास. तो first method, let us consider an equality. Okay, I'm not saying an equation, I'm saying an equality. Equality means the left hand side is equal to the right hand side. Okay, the equality is 8 minus 3 is equals to 4 plus 1. It is not an equation. It contains equal to, but it does not have any variable. So it is not an equation. It is called as an equality. Okay, equality means both the sides are equal to each other. अब देखिए 8 minus 3 5 है ना, इधर भी 5 है और इधर 4 plus 1 भी 5 है. जस्ट उनके लिखने का तरीका हमने उनको डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है बस, लेकिन ये इक्वालिटी है, दोनों तरफ 5 ही है. नाउ व्हाट यू विल डू, you will add 2 on both sides. Okay, so adding 2 on both the sides of this equality, this given equality, when we add 2, 8 minus 3 plus 2, okay, is equals to 4 plus 1 and then plus 2.
ठीक है, मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया. व्हाट आई विल गेट, आप इसको सॉल्व करेंगे, देन because you have known the addition and subtraction of integers, okay, and then पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए. 8 + 2 10 है ना, -3 इज इक्वल्स टू 4 + 1 5 एंड दिस +2 इट मीन्स 7 एंड दिस इज 7. तो आपने क्या देखा, जब आपने इधर LHS सॉल्व किया +2 करके और इधर RHS सॉल्व किया +2 करके, व्हाट यू आर अगेन गेटिंग द इक्वल नंबर, दैट इज 7 = 7. यहाँ पर 5 = 5 था, इक्वालिटी थी. यहाँ पर आपको 7 = 7 अगेन इक्वल मिल रहा है. मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने दोनों साइड पर इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर ऐड किया तो इक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इक्वालिटी ही रहेगी. मतलब ये अभी भी इक्वल ही रहा. ऐसा नहीं कि आपका 8 = 7, मतलब इधर 8 मिला और इधर 7 मिला और 8 > 7 हो गया, ये इनइक्वालिटी नहीं बनी. ये अब भी 7 = 7 रहा, इक्वालिटी ही मिला. ठीक है. लाइकवाइज इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप इसी इक्वालिटी के 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड पर, तो आपको क्या मिलेगा, 8 - 3 - 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, you will be solving LHS, okay, and here you will be solving RHS, and the RHS is your 4 + 1 - 1, okay. Then here you have 8 - 3 - 1 is -4 is equals to 4. RHS में चेक करेंगे, +1 - 1 cancel is equals to 4. It means 4 is equals to 4. It means again an equality you get. Okay, 4 is equals to 4 आया. अभी भी इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वालिटी ही बनी रही. Likewise, when you multiply by any number, multiply by same number on both side. Okay, same number on both side, divide by same number on both side, on both the sides, the equality remains. Equality means equality still holds. आप ये भी कह सकते हैं, equality still holds. It means equality ही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ये एक्सप्लेनेशन है क्लास 7. यू नीड नोट टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो व्हाट यू गेट दैट when an equality is given, then adding the same number on the both sides, subtracting the same number on the both sides, multiplying and dividing by the same number on the both sides will make no change in the equality. मतलब कोई चेंज नहीं होगा इक्वालिटी में, तब भी वो इक्वालिटी ही बनी रहेगी. यू विल गेट अगेन द इक्वल नंबर ऑन द बोथ साइड, वट एवर बी द नंबर यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट. लाइक 4 is equals to 4, 7 is equals to 7, the equality still holds. Okay, likewise this case is also true for equation. ठीक है, this is true for an equation also. अब हमने इसका यूज़ कहाँ पर किया कि ये इक्वेशन के लिए भी ट्रू है. कहने का मतलब ये कि when you have an expression containing variables and it is equals to something, then also this holds true. Like when you have an equation x + 3 is equals to 8. Okay, when you have the equation x + 3 is equals to 8, तब भी अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वेशन है. मीन्स आपके पास वेरिएबल है, इक्वल्स टू का साइन है, ये एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू है, दिस इज एन इक्वेशन. तो अगर आप इसमें सेम नंबर से, इस इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो आपकी इक्वालिटी मतलब इक्वल्स टू जो है वो बना रहेगा. इस रिजल्ट का यूज़ करके ही हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. ठीक है, और इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डू सेपरेट द वेरिएबल. इट इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग द वेरिएबल. टू फाइंड द सॉल्यूशन वी डू सेपरेट द वेरिएबल. ओके, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी वैसे समझाया है 6th स्टैंडर्ड में, दैट वेरिएबल को सेपरेट करना मीन्स आपको वेरिएबल को फ्री करना है. ओके, हियर यू कैन सी दैट इट इज x + 3 is equals to 8.
मुझे आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, लेकिन वेरिएबल के साथ क्या है 3 और एडिशन में है, तो मैं क्या करूं, दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड ऐसा क्या करूं कि ये यहाँ से 3 जो है ना ये रिमूव हो जाए। तो मैं देख सकती हूँ इफ subtracting 3 from both the sides, ओके 3 सब्ट्रैक्ट किया मैंने बोथ द साइड से, तो मुझे क्या मिलेगा x माइनस 3, क्योंकि इक्वालिटी तो इक्वालिटी रहनी है, सॉरी इट इज x प्लस 3 है ना, इक्वेशन x प्लस 3 है और मुझे पता है कि मैं दोनों साइड पर 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो इक्वालिटी विल होल्ड, तो ये इक्वल साइन आ जाएगा, इसीलिए ये इक्वल साइन मैं पुट कर पा रही हूँ। देन 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 3 हेयर ऑल्सो, ओके नाउ इट इम्प्लाइज आपका ये प्लस 3 है माइनस 3 गेट कैंसिल आउट है ना, एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. इट मीन्स द x इज इक्वल्स टू 5 इज द सोल्यूशन, और आप पुट करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 5 सोल्यूशन है क्या। इक्वेशन लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, पुट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5 पुट करके LHS को देखिए क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, जो कि इवेंचुअली इक्वल है 8 दैट इज RHS के, इवेंचुअली इक्वल है RHS के, देयरफॉर LHS is equals to RHS. It means, it implies that x is equals to 5 is the solution for given equation. Okay, so class 7, this is all the explanation. You if you want you can write it, but it is not compulsory to write it in your notebook. Just understand this. तो मैंने आपको स्टार्ट कैसे किया था, मैंने एक इक्वालिटी ली थी, मैंने आपको उसमें ये समझाया था कि जब मैं इस इक्वालिटी में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ बाय द सेम नंबर होना चाहिए ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरी इक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन तब भी इक्वल्स टू साइन तब भी बना रहता है, इक्वालिटी तब भी बनी रहती है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज़ ट्रू फॉर एन इक्वेशन ऑल्सो, और ये रिजल्ट ये इक्वेशन के लिए भी ट्रू होता है। इट मीन्स दैट यूजिंग दिस वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर एनी इक्वेशन, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 इज योर equation, okay, and then when you want to find the solution of this equation, that you want to find the value of x, what you do, you want to separate the variable, and to separate the variable you use this result, that multiplying dividing कुछ भी करें दोनों साइड नंबर से, तो मैं वो करके मुझे एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ प्लस 3 है, अगर मैं दोनों साइड माइनस 3 कर दूँ तो मेरा ये 3 हट जाएगा यहाँ से और वेरिएबल अकेला रह जाएगा, दिस इज़ द सेपरेटिंग वेरिएबल। एंड ये मैंने दोनों साइड किया, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 5 मुझे सोल्यूशन मिल गया। ऑब्वियसली चीज़ है कि वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी आपको मिलेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। एंड वेरीफाई, ये मैंने वेरिफिकेशन किया है कि हाँ देखिए x इज इक्वल्स टू 5 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने x इज इक्वल्स टू 5 पुट किया तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो आप एग्जाम में भी जब भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें, व्हाटएवर बी द इक्वेशन, अगर आप उस सॉल्यूशन को वापस इक्वेशन में पुट करते हैं और LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है, इससे आपको ये पता चलता है कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आपने फाइंड किया है दैट इज ट्रू। ओके, so now this is the only concept here. Now moving toward the exercise 4.2, I will be solving some of the parts, remaining you will do by yourself. Okay, so exercise 4.2, class 7, mark it as very important that you will write the questions also. exercise के questions भी आप लिखेंगे। first question given है, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. okay, ये question आपको note down करना है अपनी notebooks में और सभी exercises के। take care of this. now writing down the question, and after that A part and the E part I am solving. The A part says, so the question is saying that first give first the step, जो भी आप step use करेंगे वो भी आपको बताना है। ओके, तो वो आपको बताना है, it is compulsory. So
इट इज़ गिवन x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे स्टेप बताने हैं एंड देन फिर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है. सो हेयर what I will do, x minus 1 is equals to 0 I am seeing and I want to separate this variable. तो मुझे इस वेरिएबल को फ्री करना है, ठीक है, सेपरेट करना है. what I will do, यहाँ पर माइनस वन है, if I add 1 on the both side, ठीक है, मैं ऐड कर दूँ 1, और यहाँ पर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूज़ हो रहा है, तो आपको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी एबल टू थिंक. ओके, सो यू विल राइट what are you doing. So adding 1 on both the sides of equation. So x minus 1 plus 1 है ना is equals to 0 plus 1. ठीक, it implies this. तो it implies that x, यहाँ से आपका 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, x is equals to 1. So x is equals to 1 is the solution. ओके, और आप वन पुट करिए डायरेक्टली यहाँ पर 1 पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस 1 0 आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS. ओके, हेयर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो यहाँ पर माइनस 4 है, व्हाट यू विल डू, ऐड 4 ऑन बोथ द साइड्स. ओके, both side of equation. So this is your y minus 4 plus 4 is equals to minus 7 plus 4. Okay, 4 से 4 cancel, y is equals to minus 7 plus 4. माइनस 7 प्लस 4 मीन्स एडिशन हो रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का, देन द नंबर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, मीन्स 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के सामने होगा, लार्जर नंबर के सामने जो होगा वो साइन आएगा, और यहाँ पर लार्जर क्या है 7, तो यहाँ पर y माइनस इज इक्वल्स टू 3 आ गया. सो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज द solution. Okay, likewise in the other part you will do same. Okay, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, but in case of doubt you can just ask me. Now moving towards the question number 2, which again says give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. तो आपको उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है, and then A part is your 3L is equals to 42. नाउ आप जानते हैं कि आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, और आप उसके लिए सेम साइड पर, बोथ द साइड्स पर सेम नंबर से कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों में से कुछ भी. सो हेयर यू कैन सी दैट इफ यू वांट टू सेपरेट द वेरिएबल, द 3 इज टू बी रिमूव्ड, 3 यहाँ से हटना चाहिए, एंड 3 इज इन द मल्टीप्लिकेशन. तो अगर मैं दोनों इक्वेशन में डिवाइड बाय, आप ये एक ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग है, डिवाइड बाय 3 करूँगी ना मैं इधर दोनों साइड, तो मेरा ये 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान देना है. ओके, नाउ यू विल राइट द स्टेप दैट डिवाइडिंग बाय 3 on both the sides of equation. Okay, so 3L divide by 3 है ना, and 42 भी divide by 3, ये cancel, 3 14s are 42. It implies L is equals to 4, 14 is L is equals to 14 is the solution. Okay, and also I will solve the part F for you. Question number 2, F part, it is z by 3 is equals to 5 by 4. ओके, इधर राइट साइड पर आपका कुछ भी है उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि कैसे होगा, जस्ट आपको इधर ध्यान देना है कि मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन में 3 है वेरिएबल के, तो मैं अगर दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 3 की, ठीक है, तो यहाँ से मेरा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई बाय 3 on both the sides, z by 3, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 by 4. ठीक है, सो 3 1s are 3 कैंसिल, नाउ यू कैन सी z इज इक्वल्स टू 15 by 4 is the solution. You have to do this.
और अगर आपका ये 1 मार्क में भी आता है क्वेश्चन तो भी आप इसमें ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, हाफ मार्क इज दिस इज फॉर दिस, हाफ मार्क्स इज फॉर दिस, और 2 मार्क्स में आता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा ही स्टेप लिखने का. सो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करना ही है आपको. लाइकवाइज यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, बहुत सिंपल है. Now question number 3 is again give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. So I will be solving the B part of question number 3 for you. It is 5m plus 7 is equals to 17. So here you are seeing that पहले आपका अगर ये सिर्फ 5m, सो अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, प्रीवियस इक्वेशन की तरह ये सिर्फ 5m होता तो आप इसका 5m इज इक्वल्स टू 17 होता तो 5 से डिवाइड कर देते एंड सॉल्यूशन फाइंड कर लेते. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17 है. इट मीन्स आपको 2 काम करने पड़ेंगे. ये 7 भी रिमूव करना है मुझे जो कि एडिशन में है, और ये 5 भी रिमूव करना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है. तो ये एडिशन में है जब, तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने से ये रिमूव होगा. एंड आई कैन सी क्लियरली दैट द फर्स्ट स्टेप विल बी subtracting 7 from both the sides. ओके, तो अभी मैंने सिर्फ 7 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा 5m ऐसे ही रहेगा, ये 7 एंड देन माइनस 7 एंड देन इज इक्वल्स टू 17. इधर से भी मैंने माइनस 7 कर दिया. अब जस्ट इसको सॉल्व कीजिए. इट इज़ 5m, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, इज इक्वल टू 17 माइनस 7, वॉट यू विल गेट 10. ओके, अब आपकी अभी भी आपका वेरिएबल के साथ नंबर है, आपका वेरिएबल कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है. तो आप देख सकते हैं दैट इफ यू डिवाइड बाय 5, सो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स, तो मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रही थी तो मैंने यहाँ फ्रॉम लिखा था क्योंकि सब्ट्रैक्ट उससे किया जाता है. फ्रॉम मीन्स से, मैंने नंबर से 7 निकाल दिया, माइनस कर दिया. डिवाइड कर रही हूँ बोथ द साइड्स पर, ऑन बोथ द साइड्स. ओके, सो व्हाट यू विल गेट 5m डिवाइड बाय 5. ओके, एंड देन हियर 10 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5 एंड व्हाट यू विल गेट 5 से 5 कैंसिल, हियर 5 to the 10. So it implies m is equals to 2 is the solution. Okay, so question number 3 B part I have done. The other parts are also same. You can try by yourself. Like in D part it is 3p. D part में आपका क्या है ना, 3p by 10 is equals to 6 है. तो पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 10 हट जाएगा. उसके बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे फिर 3 हट जाएगा. ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में 2 इक्वेशन में होगा. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. यू विल बी कंप्लीटिंग द अदर पार्ट्स बाय योरसेल्फ एंड यू विल बी सबमिटिंग योर वर्क up to submitting your work till Monday. Okay, now let us see some of the parts of question number 4. So in the question number 4 it is saying solve the following equations. So आप सॉल्व करेंगे वैसे ही, तो जो स्टेप आप लेंगे उस स्टेप को अगर आप लिखेंगे तो वो मच बेटर है. तो आपको लिखना ही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 10p plus 10 इज इक्वल्स टू 100 है. सो यू विल सब्ट्रैक्ट बाय 10, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो यू विल गेट what you will do, subtract 10 from both the sides. So 10p plus 10 minus 10 is equals to 100 minus 10 है ना. बोथ साइड से मैंने 10 सेपरेट कर दिया. here 10 से 10 कैंसिल, you will get 10p is equals to 90 and then p is you will do 10p is equals to 90 then divide by 10 on both sides. So you will be 10p by 10 is equals to 90 by 10. 10 से 10 cancel, p is equals to 9. Okay, is the solution. So here in this exercise 4.2, as you have to say, they have said that to write down the step, and also this is basically called the step by step method. Okay, this is called as step by step method to solve the equation.
जो आपका 8th स्टैंडर्ड में भी आप सेम पढ़ने वाले हैं, सेम, ओके, इन द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस 8th स्टैंडर्ड में। तो वैसे ही आपका ये है, तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड में जब बोला जाए कि स्टेप्स लिखिए एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो आपको इसी तरीके से करना है। When you will learn in the next section, that is your in the next video lecture, you will learn about the transposing. Okay, so transposing में आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, you just transpose, which I will be explaining in the next video. तो जब आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो you will just do fast calculation and just transpose the numbers and the variable and you will get the solution for the equation. So class 7, this is all for this video, this section. To complete your exercise 4.2, submit your work and stay happy and stay safe at home.